अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का नए वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी और असामियों की भर्ती का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने BRS MLC की कविता को जमानत दे दी। दिल्ली शराब पॉलिसी केस में तिहाड़ जेल से रिहाई। तेजस्वी यादव का ज़ात पर मबनी मलदुम शुमाली पर मरकज़ी हुकूमत को तनकीद। हम मुतालबा पूरा कराने के लिए हुकूमत को मजबूर करेंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीटों की तकसीम पर मुआहिदा मुकम्मल। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक अहम ऐलान किया है कि रियासत के तमाम यूनिवर्सिटियों के लिए नए वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी का आइंदा 15 से 20 दिनों के अंदर किया जाएगा। इसके साथ ही तदरीसी और गैर तदरीसी असामियों की भरपाई भी जल्द की जाएगी, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के ओहदे शामिल हैं। यह ऐलान डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट में एक तकरीब के दौरान किया गया, जो राजीव गांधी सिविल अभ्याहस्तम स्कीम की इब्तदाई UPSC के तहत इम्तहान पास करने वाले सिविल सर्विस के ख्वाहिशमंदों को 1 लाख रुपए की तकसीम के लिए मुनक्किद की गई थी। CM रेवंत रेड्डी ने साबिका BRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उनके दौर की हुकूमत में यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी शोबे को नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से तलबा को प्राइवेट तालीम की तरफ जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि चेक की तकसीम का मकसद अवामी तहफ़्फ़ुज़ात को सुनना और उनका हल तलाश करना है। మా దగ్గర నియామకాలు చేపట్టాలంటే అసలు ఎవరు రావడం లేదు అని వాళ్ళు వస్తున్నారు. సో మేము మంత్రివర్గ సహచరులతోని ఆలోచన చేసినాం. ఒక పక్కన పరిశ్రమలకు సంబంధించిన యజమానులు నైపుణ్యం ఉన్న మాకు యువత దొరకడం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఇంకొక పక్కన సర్టిఫికెట్లు డిగ్రీ పట్టాలు పుచ్చుకొని యువత బయటకు వచ్చి మాకు ఉద్యోగ అవకాశాలు రావడం లేదు అని వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఒక అంతరం ఉంది, ఒక గ్యాప్ ఉంది. ఆ గ్యాప్ ఏంటంటే సర్టిఫికెట్ తీసుకొని బయటకు వచ్చే వాళ్లకు వృత్తి నైపుణ్యం లేకపోవడం వల్ల, చదువుకు తగ్గ అనుభవం, చదువుకు తగ్గ శిక్షణ లేకపోవడం వల్ల ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు వాళ్ళు కోల్పోతున్నారు. అందుకే అన్ని రకాలుగా ఆలోచన చేసి ఈరోజు యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీని ఒక ISB, ఒక IIIT మోడల్లో ఎవరికైతే చైతన్యం ఉన్నదో, ఎవరైతే శిక్షణ పొందాలనుకుంటున్నారో, ఎలాంటి రాజకీయ ఒత్తిడులు లేకుండా వాళ్ళకున్న నైపుణ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళకి అవకాశాలు కల్పించాలి అని ఈ యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీని మనం ప్రారంభించుకున్నాం. దీన్ని పూర్తిగా ప్రభుత్వ అజమాయిషీలో ఉంటే అధికార దుర్వినియోగం జరిగే అవకాశం ఉందని చర్చలు జరగడం, సిలబస్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆ సిలబస్ను నిర్ణయించాలంటే కూడా ప్రభుత్వంలో ఆలస్యం జరుగుతుందని కొంతమంది విఘ్నులు సూచన చేయడంతో కంప్లీట్గా ఇండస్ట్రీ డ్రివెన్ యూనివర్సిటీగా మనం ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకున్నాం. దీంట్లో మహీంద్రా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ చైర్పర్సన్ ఆనంద్ మహీంద్రాని ఈ యూనివర్సిటీకి చైర్పర్సన్గా మనం ఈరోజు వారిని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఈరోజు మహీంద్రా యూనివర్సిటీని ఎవరైతే నడుపుతున్నారో వాళ్ళని యంగ్ ఇండియా స్కిల్ యూనివర్సిటీకి చైర్పర్సన్గా మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తే వారు ఆమోదించారు. ఈరోజు IIIT చైర్పర్సన్గా పనిచేసిన శ్రీనిరాజును చైర్పర్సన్గా పెట్టినాం. వివిధ పరిశ్రమలు, రెడ్డి ల్యాబ్స్ కావచ్చు, SBI బ్యాంక్ కావచ్చు, అదానీ గ్రూప్ కావచ్చు, ఇతర కీలకమైన పరిశ్రమలకు సంబంధించిన వ్యక్తులందరినీ కూడా ఇందులో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్గా మనం నియమించడం జరిగింది. ఇందులో ప్రధానంగా నిధుల సేకరణ నుంచి శిక్షణ ఇచ్చే వరకు కంప్లీట్గా ఈ బోర్డే పర్యవేక్షిస్తుంది. ప్రభుత్వం కేవలం ఫెసిలిటేటర్ మాత్రమే. అందుకే ముచ్చర్లలో నిర్మించబోయే 4th సిటీలో 60 ఎకరాల భూమిని, దాన్ని నిర్మించడానికి అవసరమైన కోట్ల రూపాయల నిధులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ వృధా కాకూడదని ఈ సంవత్సరం 2000 మందికి శిక్షణ ఇవ్వాలని SK ఇంజనీరింగ్ అకాడమీలో ఈ సంవత్సరం 2000 మందిని ఎంపిక చేసి శిక్షణ ఇవ్వమని ఆదేశాలు ఇవ్వడమే కాకుండా నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ప్రతి సంవత్సరం 20,000 మంది స్టూడెంట్స్ను ఈ యంగ్ ఇండియా యూనివర్సిటీలో ఎంపిక చేస్తున్నాం. సర్టిఫికెట్ కోర్సులు ఉంటాయి, డిప్లొమా కోర్సులు ఉంటాయి, డిగ్రీ కోర్సులు ఉంటాయి. ఇందులో ఉత్తీర్ణులైన వాళ్ళు డిగ్రీ నుంచి భవిష్యత్ పోటీ పరీక్షలకు కానీ ఇతర దేశాలలో చదువుకోవడానికి అవసరమైన అవకాశాలన్నీ కల్పించడానికి ఈరోజు ఆ యూనివర్సిటీని మనం తీర్చిదిద్దుతున్నాం. ఇదే కాకుండా నిన్నగాక మొన్న జరిగిన ఒలింపిక్స్లో
మన దేశం యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఆశించిన స్థాయిలో కానీ ప్రజలు ఊహించిన స్థాయిలో కానీ లేదు. చిన్న చిన్న దేశాలు చాలా మెడల్స్ తెచ్చుకున్నారు, కానీ 140 కోట్ల జనాభా ఉన్న ఈ దేశానికి ఒలింపిక్స్లో ఒక రకంగా అవమానం జరిగినట్టే. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మొన్న నేను విదేశీ పర్యటనలో భాగంగానే సౌత్ కొరియాకి వెళ్ళిన. అక్కడ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ, సౌత్ కొరియన్ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీకి నేను అక్కడికి వెళ్ళిన. సౌత్ కొరియాకు 32 పథకాలు వస్తే ఒక చిన్న దేశంలో 16 పథకాలు నేను వెళ్ళిన యూనివర్సిటీకి వచ్చినాయి. అందులో ఒక అమ్మాయికి 3 గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చినాయి ఒలింపిక్స్లో. ఒకే అమ్మాయి 3 గోల్డ్ మెడల్స్ కొట్టింది. అంటే శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా, నైపుణ్యాన్ని రాబట్టడం ద్వారా ఒలింపిక్స్లో కూడా రాణించిన ఆ దేశం మన దేశానికి, మన యువతకు ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. అందుకే సౌత్ కొరియన్ యూనివర్సిటీతో మాట్లాడి యంగ్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని కూడా వచ్చే అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి మన స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని దేశంలో, మన రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకంగా నెలకొల్పుతున్నాము. ఎందుకంటే 2028 ఒలింపిక్స్లో అత్యధికంగా మెడల్స్ ఈ తెలంగాణ యువత సాధించాలన్నది మా లక్ష్యం. ఒకప్పుడు FA ఏషియన్ గేమ్స్ కానీ, నేషనల్ మిలిటరీ గేమ్స్ కానీ చాలా గేమ్లు నిర్వహించిన 2000-2002 సంవత్సరంలో నిర్వహించిన గొప్ప అద్భుతమైన స్టేడియంలు గచ్చిబౌలిలో స్పోర్ట్స్ విలేజ్ దాదాపుగా ఈ 15 సంవత్సరాలు నిరుపయోగంగా మారిపోయింది. వీటన్నిటిని కూడా తిరిగి ఉపయోగంలోకి తీసుకురావాలి. వీటన్నిటిని కూడా తెలంగాణ యువతకు శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని ఒక ఏర్పాటు చేసి తెలంగాణ యువతకు క్రీడల పట్ల ఆసక్తిని కల్పించడమే కాకుండా తెలంగాణ యువతకి అద్భుతమైన శిక్షణను ఇవ్వడం ద్వారా ఒలింపిక్స్లో ఈ దేశానికే తలమానికంగా తెలంగాణ యువతను మార్చాలని ఈ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. తొందరలో ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के लीडर और चंद्रायन गुट्टा के MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने कायम करदा तालीमी इदारों के खिलाफ मुनहदम करने की धमकियों की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि उनके फातिमा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो 40,000 से ज़्यादा तलबा को मुफ्त तालीम फराहम किए हैं पर हमला करने वालों को सख्त जवाब दिया जाएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने वाज़ह किया कि अगर कोई शख्स उनसे दुश्मनी रखता है तो वो आकर उन्हें तलवारों और बंदूकों से ख़त्म कर दे, लेकिन उनके तालीमी इदारों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश न करे। हैदरा की तरफ से गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जारी मुहिम के दौरान ओवैसी ने कहा कि कुछ अफराद उनकी तालीमी कोशिशों से हसद रखते हैं और पसमानदा तबकों की तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने मुखालिफिन की मजम्मत करते हुए कहा, मुझे गोली मारो लेकिन मेरी तालीमी इदारों को तबाह न करो। और अगर कोई समझ रहा है कि इन इमारतों को ढाकर हमारे अज़्म व हौसलों को कम करने इससे बुलंद इमारतें बनाऊंगा, इतनी बुलंद बनाऊंगा कि कुतुब मीनार की बुलंदी भी शर्मा जाए, वैसे बुलंद इमारतों को बनाता रहूंगा। ये मेरा अज़्म है, ये मेरा इरादा, ये मेरा जुनून है। ऐसा कहां से आ रहा मुझे भी नहीं मालूम। अब लोगों को शिकायत रहती है, शिकवा रहता है, अरे बाबा इतना पैसा कहां से आ रहा है मेरे पास? अरे भाई मेरे से शिकायत क्यों, अल्लाह से शिकायत करना। अरे अल्लाह तू इस गुनहगार को क्यों दे रहा, हम नेक लोगों को क्यों नहीं दे रहा? अल्लाह से पूछो। मेरी दुआ है कि अल्लाह तू इस गुनहगार के साथ उन नेक लोगों को भी दे दे दौलत, उसके साथ हिदायत भी दे दे कि ऐसे ही माना दे। मुझसे दुश्मनी है, मुझसे शिकायत है, मुझसे शिकवा है, मैं खराब हूं तो सही है। मैं 12 इमारतें बनाया, मुझ पे इल्जाम लगाने वाले, मुझको खराब कहने वाले से मैं दरखास्त करूंगा कि आप 24 इमारतें बना। मैं 40,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, आप 4 लाख बच्चों को पढ़ा लो, इससे कौम की भलाई होगी ना। मुकाबला करना है तो ये मुकाबला करो। अकबर तूने बल्लागुड़े में ऐसी इमारत बनाई तो हम इससे अच्छी बनाए। अकबर तू हजारों बच्चों को पढ़ा रहा है, हम लाखों को पढ़ा रहे हैं। अकबर तू लाखों खवातीन को हुनर दे रहा है तो हम सैकड़ों को देंगे, करोड़ों को देंगे। अकबर तो 1,000 यतीमों की कफालत कर रहा है, हम 10,000 यतीमों की करेंगे। मुकाबला इस तरीके से करो ना, जवाब अकबर का इस तरीके से दो ना
इससे कौम का भी फायदा है। नहीं, अकबर साहब यतीम के सर पे हाथ रखे तो हाथ जरा टेढ़ा था, सीधा रहना। यही हो गया ना। नहीं, अकबर साहब ऐसा क्यों रखे, ऐसा रखना। अकबर साहब खाने पे क्यों रखे, सर पे रखना। अकबर साहब सीने पे क्यों रखे, पीठ पे रखना। आप बताओ, ठीक है भाई, मेरे हाथ में रखने का सलीका नहीं आया, मुझे काबिल नहीं हूं। अल्लाह ने आपको नेक बनाया, काबिल बनाया, इल्म की दौलत से नवाजा। सही हाथ रखना आपको अल्लाह ने सिखाया है, तो चलो आप सही रखो। नहीं, हम रखेंगे नहीं, जो रख रहा है उसको बोलेंगे ये तेरा है, सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। हाँ बताओ, ये मिजाज हो गया कौन? खैर बहरहाल, मुझे उनकी परवाह नहीं है। हमारा काम जारी था, जारी है, जारी रहेगा। बीआरएस के लीडर टी हरीश राव ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो किसान कर्जों की माफ़ी और रेतू बंधु की अदायगियों में ताख़ीर के वादों को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक ख़त लिखा जिसमें मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर मुफ्त लैंड रेगुलराइजेशन स्कीम को नाफिज करे, जो असम्बली इंतखाबात से पहले वादा किया गया था। राव ने कहा कि किसानों को मुश्किल हालात का सामना है और रियासत में लोग बुखार के फैलने की वजह से बढ़ते हुए तिब्बी अखराजात के साथ जिद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि हुकूमत इंतखाबात से कबल कांग्रेस की तरफ से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए ताकि किसानों और आवाम की मुश्किलात का अजाला किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की एमएलसी के कविता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के जरिए शुरू किए गए मुकदमात में जमानत दे दी है। यह हुक्म कविता के लिए एक बड़ी राहत का बास है, जो दिल्ली शराब पॉलिसी केस में गुज़िश्ता कई महीनों से तिहाड़ जेल में कैद थी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कविता की रिहाई के साथ साथ मुकदमात के हल में मुमकिन ताख़ीर की निशानदही करता है, क्योंकि केस के ख़त्म होने में वक्त लग सकता है। Court has accepted almost all our contention and has granted us bails today. And more than that, we are happy that today the court has given a landmark judgment on the right of a woman as far as her right is concerned to attain bail, even in ED matters. Some conditions on the bail. What are these? That we are waiting for the operative part of the judgment. Once it is out, we'll get to know exactly what condition has been Will put. she be released today? The court has indicated that it will be released by 2 o'clock today. During the hearing, court made some observation regarding ED and CBI and the investigation. Let the order come. Let the order come. Whatever is in the order, that is the observation of the court. Yes, we all are very happy. The court has accepted almost all our contention and has granted us bails today. And more than that, we are happy that today the court has given a landmark judgment on the right of a woman as far as her right is concerned to attain bail, even in ED matters. Court has put some conditions on the bail. What are these? That we are waiting for the operative part of the judgment. Once it is out, we'll get to know exactly what condition has been Will put. she be released today? The court has indicated that it will be released by 2 o'clock today. During the hearing, court made some observation regarding ED and CBI and the investigation. Let the order come. Let the order come. Whatever is in the order, that is the observation of the court. Yes, we all are very happy. The court has accepted almost all our contention and has granted us bails today. And more than that, we are happy that today the court has given a landmark judgment on the right of a woman as far as her right is concerned to attain bail, even in ED matters. Court has put some conditions on the bail. What are these? That we are waiting for the operative part of the judgment. Once it is out, we'll get to know exactly what condition has been Will put. she be released today? The court has indicated that it will be released by 2 o'clock today. During the hearing, court made some observation regarding ED and CBI and the investigation. Let the order come. Let the order come. Whatever is in the order, that is the observation of the court. Yes, we all are very happy. The court has accepted almost all our contention and has granted us bails today. And more than that, we are happy that today the court has given a landmark judgment on the right of a woman as far as her right is concerned to attain bail, even in ED matters. Court has put some conditions on the bail.
That we are waiting for the operative part of the judgment. Once it is out, we'll get to know exactly what condition has been Will put. she be released today? The court has indicated that it will be released by 2 o'clock today. भारतीय किसान यूनियन ने अपने मुतालबात के हक में 1 सितंबर से तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। तंजीम के कायदीन ने यह फैसला बरनाला में रियासती सतह के इजलास में किया। किसान रहनुमाओं का कहना है कि पंजाब भर के डीसी दफातर के सामने 27 से 31 अगस्त तक एहतजाज का प्रोग्राम था, लेकिन पंजाब हुकूमत के असम्बली इजलास की वजह से जो 1 से 4 सितंबर तक होगा, एहतजाज को मुअख्खर कर दिया गया है। अब किसान तंजीम ने अपनी जिद्दोजहद को चंडीगढ़ मुंतकिल करने का फैसला किया है और 1 सितंबर से वहां तहरीक का आगाज करेगी। बिहार में अपोजिशन लीडर और साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने आज ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के हवाले से मरकज़ी हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराने का मुतालबा काफ़ी पुराना है और वो मरकज़ी हुकूमत को इस अहम मामले को अमली जामा पहनाने पर मजबूर करेंगे। तेजस्वी यादव ने जोर दिया कि इस मरदमशुमारी के ज़रिए मुल्क में मुख्तलिफ ज़ातों की दुरुस्त तादाद मालूम हो सकेगी, जो कि समाजी इंसाफ और तरक्याती पॉलिसी की तश्कील में मददगार साबित होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अपोजिशन इस मुतालबे के हक़ में भरपूर मुहिम चलाएगी और हुकूमत पर दबाव डालेगी ताकि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी जल्द अज जल्द कराई जा सके। इसको पार्लियामेंट में उठाया, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि नहीं कराएंगे। हम तो डेलीगेशन भी लेके गए थे मिलने प्रधानमंत्री जी से, तो मना कर दिया गया। तभी तो हमारी सरकार बनी बिहार में, तो हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गणना कराया और आरक्षण दिया, लेकिन शेड्यूल 9 में भी लोग नहीं डाल रहे। तो ये होना चाहिए। जातीय जनगणना कराने की मांग की है सर। हम लोग तो पूरे शुरू से ही मांग करते रहे कि पूरे देश में होना चाहिए। वो तो खुद ही सरकार के पार्ट है। अगर सरकार नहीं करा रही, इसका मतलब वो खुद नहीं करा रहे, तो कथनी या करने में तो भारी अंतर है इन लोगों के, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग तो कितनी बार इसको पार्लियामेंट में उठाया, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि नहीं कराएंगे। हम तो डेलीगेशन भी लेके गए थे मिलने प्रधानमंत्री जी से, तो मना कर दिया गया। तभी तो हमारी सरकार बनी बिहार में, तो हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गणना कराया और आरक्षण दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान सीटों की तकसीम का मरहला तय पा गया है। दोनों जमातों ने 85 सीटों पर मुआहिदा किया है, जबकि 5 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला का ऐलान किया है। आज दिल्ली में होने वाली इस मीटिंग के दौरान सीटों की तकसीम पर तमाम पार्टियों में इत्तफाक कायम किया गया और इस मुआहिदे पर बाज़ाब्ता मोहर सबत कर दी गई है। इस इत्तेहाद के तहत दोनों जमातें मुश्तरका तौर पर इंतखाबी मुहिम चलाएंगी ताकि अपनी इंतखाबी हुकूमत अमली को मजबूत कर सकें। और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं, उनसे लड़े जाए। आज खुशी की बात है कि हम लोगों ने नेगोशिएशंस पूरे कर दिए हैं और बड़ी ही अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ी। अब इसमें खरा साहब से मैं कहूँगा ये कुछ कहना चाहे तो would you like to say something? The idea is to protect the soul of the Kashmir. Because the one side BJP is trying to destroy the soul of Jammu and Kashmir. Our India Alliance main objective is to save the soul of the Kashmir, save Jammu and Kashmir. So that is why Congress and National Conference coming together to make a government in Jammu Kashmir which is totally friendly with Jammu Kashmir people, totally save the people of Jammu and Kashmir. That's why we done discussion in a cordial relations and we entered into a formula which our leaders will be shared. We will fight together, we will win Jammu and Kashmir, we will form the government in Jammu and Kashmir. बताया अलायंस का जो स्पिरिट है, अलायंस का स्पिरिट जो है डॉक्टर फारूक साहब ने और वेणुगोपाल जी ने बताया कि ये अलायंस स्टिच करने के पीछे इसका स्पिरिट क्या है और जो हम लोगों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग की है बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुई। एक दूसरे की सेंसिटिविटीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए
और कुछ कंटेंशियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दोबारा से उसको रिव्यू किया और फाइनली हम एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए जिसके तहत आउट ऑफ 90 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस विल कंटेस्ट 51 सीट्स, क्लियर 51 सीट्स, 51 टोटल। No, that also I added. No. 80 plus. अगर क्लैरिकल कुछ होगा 32 एंड वी हैव एग्रीड और नैरो डाउन करके हमने एक फ्रेंडली कंटेस्ट पे भी, जहाँ पे हमारे कुछ मुश्किलात आ रही थी, तो हमने उसमें फ्रेंडली कंटेस्ट बट इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर from both sides, and we have narrowed it down to 5 seats, and over and above these 88 seats, we have left 1 seat for CPIM and 1 seat for Panthers Party. So in total it comes to 90 seats, जिसमें से फर्स्ट फेज में 24 सीट्स, जिसके वास्ते कल लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है। देन सेकंड फेज में 26 सीट्स और थर्ड फेज में 40 सीट्स जो फेज वाइज आ रही हैं, और उसमें हर फेज में वी हैव अ स्टेटेड नंबर, एनसी के वास्ते एक स्टेटेड नंबर है और उसी के हिसाब से we'll start our issuing the this mandates from right now. Yes. So what about the other 5 seats? कांग्रेस ने बीजेपी को रुकने पार्लियामेंट कंगना रनौत के किसानों के बारे में किए गए काबिल एतराज़ तबसरे पर शदीद एतराज़ जाहिर किया है। कांग्रेस ने बीजेपी से मुतालबा किया है कि वो इस मामले में अपनी वजाहत पेश करे और कंगना रनौत को पार्टी से निकाले। नई दिल्ली में वाक़ कांग्रेस हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के तर्जुमान सुप्रिया ने कहा कि कंगना रनौत ने किसानों को कातिल और जानी करार देकर इंतहाई तौहीन आमेज़ बयान दिया है, जिसे सुनकर लोगों का सर शर्म से झुक गया और मुश्ताल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रनौत जो अब सिर्फ अदाकारा नहीं है बल्कि बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट भी है, ऐसे बयान देने में माहिर हैं। कल एक बेहद वाहियात बयान इस देश को सुनने को मिला और वो सुनकर बहुतों का सिर शर्म से झुक गया और बहुत लोग बेहद आक्रोशित हुए। और ये बयान और इस तरह के बयान देने में उनको पारंगत हासिल है, लेकिन अब वो सिर्फ एक फिल्म एक्टर नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, बड़ी चुनी हुई सांसद हैं, बड़ी प्रिय सांसद हैं, हैंडपिक करी गई थी वो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। कंगना रनावत ने कल कहा कि किसान आंदोलन के जो किसान थे उनको बलात्कारी और हत्यारा बताने का काम किया। इस देश के अन्नदाताओं के खिलाफ ऐसे शब्द शायद ही किसी राजनेता ने इस देश के लंबे इतिहास में कभी बोले हों। इस देश के अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा बताया और उसके बाद यह भी कहा कि ये जो सारा किसान आंदोलन था, जो किसान अपने हक की, अपने अधिकारों की, अपने सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ रहे थे, जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, जहां 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, जहां 1.25 से 1.5 साल तक किसान खुले आसमान के नीचे गर्मी, पानी, बरसात, आंधी में, ओलों में बैठे रहे, वहां पर इनका कहना है कि ये अमेरिकी और चीनी शक्तियां ऐसा कर रही थी। अमेरिका और चीन हमारे देश में दखलंदाजी कर रहा था, अस्थिरता पैदा कर रहा था किसान आंदोलन करा के। तो जाहिर है इस पर आक्रोश होना था। जाहिर है इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। जाहिर है कि जो किसान धरती का कलेजा फाड़कर अन्न उगाता है, उसको चिंता नहीं कि गर्मी हो, आंधी हो, पानी हो, बरसात हो,
ओले हों, वो अन्न उगाता है, हमारा पेट पालता है, उस किसान को अगर बलात्कारी और हत्यारा कहा जाएगा तो आक्रोश होगा। और एक बात यह भी सच है कि किसान चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे कर्नाटका का हो, यह असम्मान तो कोई नहीं सहेगा। तो आक्रोश बहुत हुआ और सवाल हुआ बीजेपी से कि क्या ये आपकी सांसद कह रही हैं या ये आपका आधिकारिक स्टैंड है? क्या आप भी आंदोलन करने वाले किसानों को, हक के लिए लड़ने वाले किसानों को हत्यारा और बलात्कारी बताते हैं? क्या ये आपकी सरकार का मत है? क्या ये आपका मत है? अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। तो आज एक रेयर मूव में, क्योंकि हरियाणा का चुनाव भी पास में है और आगामी हार तो ऐसी है कि चुनाव टालने की मांग हो रही है। पता है कि 240 पर लाकर देश के मजदूर और किसानों ने सबक सिखाया है, अभी हरियाणा बिस्तर बोरिया बंधवाने वाला है। तो एक स्टेटमेंट आया भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिसमें कहा गया कि किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है, उनसे गहरी असहमति है इस बयान से और नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए ना वो अधिकृत है, ना उनको अनुमति है और उनको निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के बयान भविष्य में ना दें। तो हमारे इस मंच से कुछ सवाल हैं। आपकी चुनी हुई सांसद है, चहेती सांसद है, बड़ी लोकप्रिय है आप लोगों के पार्टी में। अगर ये उनका मत नहीं है, अगर आपकी पार्टी का ये मत नहीं है, तो निकाल बाहर करिए ऐसे सांसद को। ये मैं हृदय से माफ करने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी 2024 में। प्रज्ञा ठाकुर गोडसे की पुजारी को हृदय से माफ नहीं कर पा रहे थे, अब ये हमारा मत कह के पलड़ा झाड़ने हम नहीं देंगे। अगर ये आपका मत नहीं है तो इस देश के किसानों के खिलाफ जिसने इस तरह की बात की है उसको किसी कीमत पर संसद में बैठने का हक नहीं है। निकाल बाहर कीजिए अपनी पार्टी से, हाथ जोड़ के माफी मंगवाइए किसानों से, और अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते तो आप खुद माफी मांगिए इस देश के किसानों से। अमेरिका के मारूफ कारोबारी शख्सियत एलन मस्क ने आज एक मुतनाज़ा बयान दिया है कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस सदर मुंतखब होती हैं तो ये अमेरिका और उसकी जमहूरियत के लिए एक आफत साबित होगी। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जमहूरियत और अमेरिका को बचाएंगे, मेरे अल्फाज पर तवज्जो दीजिए, मोहतरमा कमला हैरिस एक आफत साबित होंगी। इस बयान के बाद मस्क के राय पर मुख्तलिफ हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का नए वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी और असामियों की भर्ती का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस एमएलसी की कविता को जमानत दे दी। दिल्ली शराब पॉलिसी केस में तिहाड़ जेल से रिहाई। तेजस्वी यादव का ज़ात पर मबनी मलदूम शुमाली पर मरकज़ी हुकूमत को तनकीद, हम मुतालबा पूरा कराने के लिए हुकूमत को मजबूर करेंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीटों की तकसीम पर मुआहिदा मुकम्मल। 1 TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।